Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 13, that is organisms and populations. Today we will discuss about the populations. Population is defined as a group of individuals of a species living in a well-defined geographical area at a specific time with the capability of interbreeding. Population की बात करें तो सिंपल शब्दों में population is a group of individuals of the same species. एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल का जो ग्रुप है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहती है और उसके जो मेंबर हैं वो आपस में इंटरब्रीडिंग करने में सक्षम होते हैं। अब इंटरब्रीडिंग जो है वो एक स्पीसीज के मेंबर ही कर सकते हैं आपस में, एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज के मेंबर के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन शेयर द सेम जीन पूल, हैव द सेम मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड बिहेवियरल traits, undergo the same life cycle, experience similar ecological processes at particular stages of life cycle and possess the same adaptations to the existing environment. तो एक ही पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक ही प्रकार के ट्रेड शो करते हैं, एक ही प्रकार का लाइफ साइकिल शो करते हैं और एक ही प्रकार के इकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो उनको एक्सपीरियंस करते हैं और उसके साथ साथ एक ही प्रकार की अडेप्टेशन दर्शाते हैं। Populations of different species cannot interbreed among themselves. However, interbreeding cannot be used as a criteria in asexually reproducing organism. तो asexual reproduction करने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें हम interbreeding का क्राइटेरिया कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें interbreeding का सवाल ही नहीं है, जो रिप्रोडक्शन ही वो asexual करते हैं। तो therefore, cormorants in wetland, rats in abandoned dwelling, teakwood trees in forest tract, bacteria in a culture plate or lotus plants in a pond are all examples of different populations. Hence, in ecology, population is an aggregate of all individuals of a species living in the same area which functions as a unit of biotic community. Now coming to population attributes. Population जो है उसमें कुछ ऐसे attributes या inherent characteristics या qualities होती हैं जो कि उसके individual organism में नहीं पाई जाती। So population has certain attributes or inherent qualities which an individual organism does not possess. जैसे individual जो है he may have death or birth, but population has death and birth rates. तो individual की अगर हम बात करें तो उसको हम death और birth के रूप में बोलेंगे, उसकी death हो गई या उसकी birth हो गया। अगर हम population की बात करें तो उसमें death और birth नहीं है, उसमें death और birth rates होते हैं। इसी प्रकार से इंडिविजुअल है उसका सेक्स होता है, जब वो मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पर सेक्स रेशो होगा। सो पॉपुलेशन हैज देयरफॉर ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो पॉपुलेशन है वो ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स शो करती हैं, जैसे डेंसिटी है, नेटेलिटी है, मोर्टेलिटी है, सेक्स रेशो, डिस्पर्सल, एज डिस्ट्रीब्यूशन, बायोटिक पोटेंशियल एंड ग्रोथ फॉर्म्स। Population size is also influenced by environmental resistance, carrying capacity, abiotic and biotic factors of the environment. तो किसी भी population का जो size है उसको environmental resistance, जो carrying capacity होती है, means number of individuals that can be sustained by a particular ecosystem, that is known as carrying capacity. उसके अलावा biotic और abiotic factor जो होते हैं environment के, वो भी उसको प्रभावित करते हैं। Now first attribute is population density. Population density is the number of individuals of a population found in a unit area or space at a given time. Means किसी भी दिए गए समय में किसी particular area में कितने individual हैं किसी population के, तो number of individual present per unit area is known as population density. It can be calculated by the formula D is equal to N/S. यहाँ पर D जो है वो population density है, N is the total number of individual of the given area and S is the unit of space और एरिया वेयर द पॉपुलेशन हैज बीन काउंटेड। तो जो यूनिट है, अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट की जो मेजरमेंट है वो इंडिविजुअल के साइज या हैबिटेट के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट की बात करें या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की, तो उसमें दे आर इंडिकेटेड इन 2 डायमेंशंस। तो उसमें जो स्पेस या एरिया होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में हम या किलोमीटर स्क्वायर में कंसीडर करेंगे। अगर हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म या एक्वाटिक हैबिटेट की बात करेंगे तो उसमें हम 3 डायमेंशनल में उसको मेजर करेंगे, तो उस केस में हम मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब को कंसीडर करेंगे। इट इंडिकेट्स द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो किसी भी पॉपुलेशन के साइज को इंडिकेट करती है।
Although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. अब वैसे तो किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को अगर हमने काउंट मेजर करना है तो उसमें जो उसका इंडिविजुअल जितने भी इंडिविजुअल हैं उसको काउंट करना का जो उसको हम सबसे अप्रोप्रिएट मेजर मानते हैं, लेकिन कई केसेस में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया में इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस प्लांट्स only a single huge banyan tree with a large canopy stating that the population density of banyan is low relative to that of carrot grass amounts to underestimating the enormous role of the banyan in that community। तो अगर हम किसी कम्युनिटी में एक बनियान ट्री और 200 कैरेट ग्रास को हम कंपेयर करें और बोलें कि कैरेट ग्रास की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो उससे ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा मीनिंगलेस लगेगा। तो इस केस में क्या करते हैं, जो परसेंटेज कवर है या बायोमास है उसको हम कंसीडर करेंगे। So in such cases, the percentage cover or biomass is a more meaningful measure of the population size. Similarly, as a total number is not again an easily adoptable measure if the population is huge and counting is impossible or very time consuming. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी लेबोरेटरी में हम किसी पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया का जो कल्चर है उसको हमने ग्रो करवाया है, तो इसकी हमने पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर करनी है। तो इस केस में बैक्टीरिया की जो टोटल काउंट है उसको कर पाना असंभव है, तो इस केस में भी हम बायोमास को ही कंसीडर कर सकते हैं। तो सच केसेस बायोमास कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द पॉपुलेशन डेंसिटी। Sometimes for certain ecological investigations there is no need to know the absolute population densities। तो उस केस में जो रिलेटिव डेंसिटीज हैं उन्हीं से हम काम चला लेते हैं। So for instance, the number of fish caught per trap is good enough measure of its total population density in a lake। तो किसी भी लेक में हमने किसी फिश की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हमने काउंट करनी है तो उसमें हम टोटल नंबर काउंट नहीं करते, तो उसमें क्या करते हैं, एक ट्रैप में कितनी फिशेस पकड़ी जाती हैं, तो उसके आधार पर हम पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन साइजेस आर एस्टिमेटेड इनडायरेक्टली विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम और सीइंग देम। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन साइजेस को हम इनडायरेक्टली उनका एस्टिमेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द टाइगर सेंसस इन अवर नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स is often based on pug marks and fecal pellet। तो जो नेशनल पार्क हैं और टाइगर रिजर्व्स हैं उनमें टाइगर की जो सेंसस है या उनकी संख्या की काउंटिंग किस प्रकार से होती है, उनके पग मार्क्स पैरों को निशान और फिकल पैलेट्स की काउंटिंग द्वारा होती है। नेक्स्ट इज सेक्स रेशो। इट इज इंपॉर्टेंट एज ओनली द फीमेल्स bear offspring। एन इंडिविजुअल हैज ए सेक्स बट पॉपुलेशन हैज सेक्स रेशो। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिपिक्टेड एज फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 मेल के पीछे कितनी फीमेल्स हैं, दैट इज सेक्स रेशो। उसके बाद है एज डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 3 इकोलॉजिकल एजेस, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो यहाँ हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। प्री रिप्रोडक्टिव मीन्स ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो यंग होते हैं और जो अभी तक रिप्रोडक्टिव एज उन्होंने अटेन नहीं की है। तो अगर हम ये 3 प्रकार की पॉपुलेशन हम यहाँ दर्शाई है, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। तो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल ही आगे चलकर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल को दर्शाएंगे, मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में जब एंटर करेंगे तो ऑब्वियसली इनकी संख्या ज़्यादा होगी तो ये भी बढ़ेगी, और रिप्रोडक्टिव में जब संख्या बढ़ेगी तो अगली भी बढ़ेगी। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है। ऐसी स्टेबल पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल की संख्या बराबर रहती है, और डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव की कम होती है और रिप्रोडक्टिव की ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव की भी एंड की तरफ कम होती जाती है। सो दे आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स होते हैं वो किसी भी पॉपुलेशन में जो इंक्रीज होती है वो इनके कारण होती है। वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स occurs in rapidly growing or expanding population. Their number is small in declining population. Reproductive individuals are the ones which are actually adding new members to the population. तो reproductive individual की बात करें तो ऐसे individual जो basically reproduction करते हैं, their number is almost equal to pre-reproductive individual in a stable, mature populations. Here the population growth is 0. Next one is post-reproductive individuals. They are the older individuals which no longer take part in reproduction. Their small size indicates a growing population, while a large number indicates a stable or declining population. Next one is age pyramids.
An age pyramid is a graphic representation of population of various age groups of a population with pre-reproductive at the base, reproductive in the middle and post-reproductive at the top. So there are three types of age pyramids: triangular, bell-shaped and urn-shaped. तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये ट्रायंगुलर है। यहाँ पर ये तीनों की अगर हम पिरामिड की बात करें तो बेस के ऊपर प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव है और टॉप में पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, ये स्टेबल है और ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। नेक्स्ट वन इज नेटेलिटी और बर्थ रेट। इट इज द एवरेज नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एडेड पर यूनिट पॉपुलेशन ड्यू टू बर्थ, एजिंग एंड जर्मिनेशंस। तो इंडिविजुअल की जो एवरेज नंबर है जो कि ऐड किए जाते हैं किसी पॉपुलेशन में। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेटेलिटी, पोटेंशियल एंड रियलाइज्ड। पोटेंशियल नेटेलिटी को बायोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। इट इज द मैक्सिमम बर्थ रेट दैट कैन बी अचीव्ड अंडर आइडियल कंडीशंस ऑफ एनवायरनमेंट, रिप्रोडक्टिव एज एंड सेक्स रेशियो। तो बायोटिक पोटेंशियल जो है ये क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल मैक्सिमम कितने रिप्रोडक्शन कर सकता है, कितने इंडिविजुअल की वो आगे उनको पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो बायोटिक पोटेंशियल है ये वास्तव में अचीव नहीं होता क्योंकि एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। दूसरा है रियलाइज्ड नेटेलिटी, ये है वास्तव में। सो द एक्चुअल बर्थ रेट ऑब्टेन्ड अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस इज नोन एज रियलाइज्ड नेटेलिटी। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो जो नेटेलिटी होती है, जब बर्थ रेट होती है, इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। नेक्स्ट इज मोर्टेलिटी और डेथ रेट। It is the average number of natural deaths per unit population per unit time. तो किसी population में जो natural death होती हैं किसी दिए गए unit time में और unit population में, that is known as death rate. Human being में इसको किस प्रकार से express किया जाता है? Number of death per 1000 individual per year. Next is population dispersal. It is the movement of individuals or their propagules into and out of an area. पॉपुलेशन डिस्पर्सल का मतलब इंडिविजुअल जा उनके प्रोपेग्यूल की मूवमेंट, किसी एरिया के अंदर जा एरिया से बाहर जाना, दैट इज पॉपुलेशन डिस्पर्सल। तो इससे क्या होता है, पॉपुलेशन का साइज जो है उसमें बदलाव आता है, बढ़ता है या कम होता है। सो पॉपुलेशन डिस्पर्सल इज हेल्पफुल इन वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, colonization of new areas, protection from predators and invaders, extreme heat and cold season, overcrowding and for obtaining better food and shelter. ये तीन प्रकार का होता है, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन एंड माइग्रेशन। इमिग्रेशन का मतलब इनवर्ड मूवमेंट। इट इज अ परमानेंट इनवर्ड कमिंग ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम आउटसाइड इनटू एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। तो जो इमिग्रेशन होती है वो फूड की अवेलेबिलिटी या शेल्टर की अवेलेबिलिटी के लिए होती है, और जो एमिग्रेशन है इट इज परमानेंट आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल। किसी भी पॉपुलेशन से कुछ इंडिविजुअल की परमानेंट मूवमेंट हो जाना बाहर, दैट इज एमिग्रेशन। फॉर सेटिंग इनटू न्यू एरियाज, एमिग्रेशन जो होती है वो लोकल पॉपुलेशन के साइज को कम कर देती है। और तीसरा है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो होती है ये टू वे मूवमेंट होती है, इसकी चर्चा हमने अडेप्टेशन में भी की थी। तो इसमें जो माइग्रेशन होती है, जो पॉपुलेशन का जो साइज है उसको अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें दोनों तरफ होती है मूवमेंट, इंडिविजुअल आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।